করার জন্য। সম্মান জানানো হচ্ছে নিহারিকা দে ফ্রম ওয়েস্ট ত্রিপুরা, সেকেন্ড পজিশন। একটা করতালি সকলের কাছ থেকে। And our third position, Manusha Dash from Gomoti district. যোগ প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে শরীরকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় তাদের এই অনুশীলন, দীর্ঘদিনের অনুশীলন আজ এখানে সাফল্যের সিঁড়ি। আজ ওনারা সফলতার অর্জনে এগিয়ে চলছে। এভাবেই যোগ প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে আমরা শরীরকে সুস্থ রাখবো, নিজের মনকে সুস্থ রাখবো, আমাদের পুরো রাজ্যকে, দেশকে সুস্থ রাখবো। অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানীয় অতিথিদের এই সুন্দর ফেলিসিটেশন অনুষ্ঠানকে সম্পন্ন করার জন্য। এবার এতক্ষণ আপনারা যার কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে আছেন, আমি আন্তরিকভাবে অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত অনুরোধ করছি আমাদের আজকের উদ্বোধক প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে ওনার মূল্যবান কথায় আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করার জন্য। শুভ সকাল, সবাইকে নমস্কার। 11তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যে উদযাপন 21শে জুন, আজকে এখানে স্টেট লেভেলে যেটা হচ্ছে, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টসের শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, আমাদের অনারেবল ডেপুটি স্পিকার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়, মাননীয় বিধায়িকা এই এলাকার শ্রীমতী মীনারানী সরকার মহোদয়া, শ্রী জে কে সিনহা চিফ সেক্রেটারি, ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সেক্রেটারি ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। তাছাড়া এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব উপস্থিত আছেন শ্রী অনুরাগ জি এবং শ্রী এস বি নাথ ডাইরেক্টর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস। তাছাড়া আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পদ্মশ্রী জিমনাস্ট দীপা কর্মকার এবং এখানে উপস্থিত এই ডিপার্টমেন্ট তথা অন্যান্য যে লাইন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত সিনিয়র অফিসিয়ালস এবং বিভিন্ন স্কুল থেকে যারা স্টুডেন্টরা এখানে এসছেন, কলেজ থেকে যারা এসছেন এবং যারা ডিস্টিংগুইশড গেস্ট এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই যে 11তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন আমাদের ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট এবং ন্যাশনাল আয়ুষ মিশনের যৌথ উদ্যোগে যেখানে উদযাপন হচ্ছে, গত বছরও এখানে হয়েছিল। আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সারা ত্রিপুরাতে আজকে একযোগে এই যোগা দিবস উদযাপন হচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2014 সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে 21শে জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালনের জন্য উনি প্রস্তাব রাখেন, তখন সেটা প্রায় 177টি দেশ একযোগে তাকে সমর্থন করে এবং 2015 21শে জুন এই আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আমরা জানি যে ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে আমাদের মুনি ঋষিরা এই যোগ ব্যায়াম করে আসছে
এবং এতে করে আমরা যোগ যখন করি তাতে করে আমরা নিজেদেরকেও চিনতে পারি। আসলে আমরা আমাদের নিজেদেরকেই চিনতে পারি না, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যোগার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে আমরা চিনতে পারি। আমি বারবার সব জায়গায় বলি হু এম আই, হু উই আর আই, এই যে বিষয়গুলো আসে যোগার মাধ্যমে সেটা আমরা জানতে পারি। এবং আমরা এটাও জানি যে সারা বিশ্বের প্রথম যে যোগগুরু কথিত আছে যে মহাদেব বলেন যোগার আদিগুরু। তা আমরা সেই বিষয়টা সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আহ্বানে যখন এই আন্তর্জাতিক যোগা দিবস শুরু হলো, সেটা এখন অন্যান্য যে দেশ তারাও কিন্তু প্রথমে তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখলো যে না, এই যোগার মাধ্যমে মানে আজকের যে থিম যে ইয়োগা ফর আর্থ ওয়ান হেলথ, এই বিষয়টা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সেইভাবে সমস্ত দেশ এখন সমর্থন করছে। বিভিন্ন জায়গায় আজকে এই যোগা পালন হচ্ছে। এখানে শুধু আমেরিকা এবং চীন দেশের কথা যদি বলি, প্রায় 1,30,000 যোগা সেন্টার সেখানে আছে এবং সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের যে যোগা দ্যাট রিমাইন্ডস আস দ্যাট এ হেলদি মাইন্ড অ্যান্ড বডি লিড টু হেলদি লাইফ। কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে নিয়মিত যদি যোগ চর্চা করা যায় তাহলে শরীর ও মনকে মজবুত করা যায়। এবং যেহেতু আমাদের যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিরা আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন, সেগুলোকে আবার পুনরুদ্ধার আমার মনে হয় হচ্ছে। যবে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014 থেকে ওনার দায়িত্বভার নিলেন, আমরা দেখলাম যে এক একভাবে উনি যেভাবে আমাদের নির্দেশ এবং আমাদের মার্গদর্শন করেন, সত্যি আমরা অভিভূত হয়ে যাই। সারা পৃথিবী এখন ওনার যে পথ উনি দেখাচ্ছেন সেগুলো আমরা দেখছি। এখনকার ছেলেমেয়েরা প্রায়ই এখন ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যোগার দিকে তাদের যে এরকম আকর্ষণ সেটা কিন্তু অনেকটা কমে গেছে। তো এই যে যোগা দিবস আজকে আমরা পালন করি, সেটা শুধু একদিনের জন্য যেন না হয়। এখানে আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এসছেন, যারা স্টুডেন্টরা আছেন তাদেরকেও আমরা বলবো যে তারা যেন নিয়মিতই যোগ ব্যায়াম করেন। এবং যোগ ব্যায়াম করতে গেলে শুধু বয়সের কোনো সমস্যা নেই, বেশি বয়স হয়ে গেলেও কিন্তু যোগা করা যায়। কিন্তু নিয়মিত যদি করা যায় তাহলে শরীরের যে ফ্লেক্সিবিলিটি এবং বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যোগা। এবং আমাদের এই যোগার প্রসার আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এবং আমাদের যে ক্লান্তি, আমরা এখন মডার্ন যুগে আমরা বাস করি, সবাই এখন যেভাবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, যে স্ট্রেস থাকে, তার থেকে যে অবসাদ হয় তার থেকে যদি বাঁচতে হয় এবং শরীর ও মনকে যদি সুস্থ রাখতে হয়, যোগা আমাদের খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধেও যোগা কিন্তু কাজ করে আমরা গত পরশুদিনও একটা প্রোগ্রাম আমাদের অ্যাসেম্বলিতে আমরা করেছিলাম। আজকের যোগা দিবসে আমি সবার কাছে আহ্বান রাখব যে HIV এবং এইডস নিয়ে আমরা কিন্তু খুব চিন্তিত। এবং আমি এই কথাটাই বলবো যে ত্রিপুরাতেও কিন্তু আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আমাদের অবস্থানও কিন্তু খুব বেশি একটা ভালো নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদিকে আমরা যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছেন, স্কুল কলেজের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এখন দেখা যাচ্ছে এর প্রচুর পরিমাণে HIV এবং এইডস। তার থেকে আমাদের একটা গণ আন্দোলন খুবই প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি যে এই ইমিউনো ভাইরাস, যেটা হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস, সেটাকে আমাদের যে শরীরের ভিতর যদি একবার প্রবেশ করে তাহলে আমাদের ইমিউনিটি কিন্তু কমিয়ে দেয়। এবং সেই ইমিউনিটি যখন কমে এবং যদি ঠিক সময়ে যদি তার চিকিৎসা না করা হয় তাহলে অ্যাডভান্স স্টেজে সেটা এইডস, অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম আমাদের তৈরি হয়। HIVতে কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না। শরীরের যখন ইমিউনিটি কমে যায় তখন শরীরের বিশেষ করে আমাদের রক্তে যে WBC আছে সেটাকে অ্যাটাক করে HIV। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা ঠিক সময়ে যদি ওষুধ নেই তাহলে যে আমাদের
এই রোগ থেকে, কারণ এর তো কোনো সময় একবার যখন এইচআইভি হয় সেটা কোনো অবস্থায় কিন্তু আর শরীর থেকে যায় না, কিন্তু তার যে ভাইরাল লোড সেটা যদি কমানো যায় তাহলে এই যে অপরচুনিস্টিক যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অন্যান্য ভাইরাস বা ফাঙ্গাস সেইগুলো কিন্তু অ্যাটাক করে না এবং তাতে করেই মানুষ মারা যায়। তো আমি আজকের এই যোগা দিবসে আমি এটা বলবো, যদি আমরা এদিকে নজর রাখি, আমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় যাচ্ছে কি করছে তার দিকে নজর রাখি এবং একযোগে সবাই মিলে এই এইচআইভি এবং এইডস রোগ থেকে আমাদের পরিত্রাণের খুবই প্রয়োজন। আমাদের যে শুধু যোগা শুধু তাই নয়, আমাদের মেমোরি তো এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে তাদের জন্য খুব প্রয়োজন, যে যখন যোগা আমরা করি তাহলে ব্লাড সার্কুলেশনে কিন্তু ব্রেইন এবং শরীরের প্রতিটা জায়গায় যায়, তাতে করে আমাদের এই যোগার মাধ্যমে শার্পেন্স দ্য মেমোরি। শুধু তাই নয়, যারা পড়াশোনাতে আছে তাদের পড়াশোনায় ভালো হয় এবং আমি আশা করি যে আজকের এই যোগা দিবস থেকে আমরা যা জানলাম বা বুঝলাম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের যে মার্গদর্শন করেছেন সেটা আমরা প্রতিদিন আমরা করব। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, মে দ্য লাইট অফ যোগা গাইড ইউ টুয়ার্ডস ওয়েলনেস অ্যান্ড ইনার পিস। হ্যাপি যোগা ডে। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান কথায় আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে ঘিরে আমাদের এই প্রেক্ষাগৃহে যে আয়োজন করা হয়েছে যোগা ডেমনস্ট্রেশনের, এখন সেই সময় উপস্থিত হয়ে গেছে। আমি সম্মানীয় অতিথিদের কাছে বিনম্র অনুরোধ করব, আমাদের মঞ্চের সামনে সুন্দর যোগা ম্যাট রয়েছে। এখানে আজকের এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে, যেটার মূল অর্থ হলো ওয়ান আর্থ ওয়ান হেলথ, তার মধ্যে যোগ ডেমনস্ট্রেশন করার জন্য অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত অনুরোধ করছি। সকল সম্মানীয় অতিথিদের কাছে আবারও অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত অনুরোধ করা হয়েছে, যোগা ডেমনস্ট্রেশনের জন্য আমাদের সুন্দর ম্যাট রয়েছে, এখানে আসন গ্রহণ করে আজকের দিনের যে মূল বিষয় যোগা ডেমনস্ট্রেশন আমরা শুরু করব এবং সাথে অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিরা এবং যারা এই পরীক্ষাগৃহে রয়েছেন, এই হল রুমে যারা উপস্থিত রয়েছেন সকলের কাছে আমি আবারও অনুরোধ করছি যোগা ডেমনস্ট্রেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমাদের ইনস্ট্রাক্টররা রয়েছেন, প্রত্যেকের মাঝে মাঝে রয়েছেন ইনস্ট্রাক্টররা, দেখিয়ে দেবেন কিভাবে যোগ প্রাণায়াম করতে লাগবে। যোগ প্রাণায়ামের মধ্য দিয়েই আমরা মনকে সুস্থ করে তুলব, আমাদের দেহকে সুস্থ করে তুলব, তাহলেই আমরা সুস্থ থাকব, সুন্দর থাকব, একটা সুন্দর দেশ গড়ে উঠবে। আসুন আমরা সবাই মিলে যোগ প্রাণায়ামে অংশগ্রহণ করি। নিজেকে সুস্থ রাখতে, নিজের পরিবারকে সুস্থ রাখতে, সমাজকে সুস্থ রাখতে যোগ প্রাণায়াম হলো একটা প্রত্যেক দিনের অনুশীলন, যে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা নিজের দেহকে, মনকে সতেজ রাখতে পারবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের যোগার ডেমনস্ট্রেশন যারা করাবেন মঞ্চে চলে এসেছেন, তাদের ডেমনস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে আপনারা সকলে যোগ প্রাণায়ামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আসুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমরা সকলে মিলে যোগা অনুশীলনের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তির অঙ্গীকার গ্রহণ করি। নিজেকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি সমাজ ও দেশকে সুস্থ করে তুলি।
সকলকে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনম্র অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল সম্মানীয় অতিথিদেরকে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনম্র অনুরোধ করা হচ্ছে। Our instructor will be instructed. Please follow the instructions. नमस्कार। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपका स्वागत है। योग के इस अनमोल दुनिया में आपका स्वागत है। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसकी विशेषता ये परीक्षित विज्ञान पर आधारित है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी ये हजारों वर्ष पूर्व था, वैसे ही लाभकारी ये आज भी है। योग अभ्यास करने से पूर्व योग अभ्यास की निर्देश और सिद्धांत का हम अवश्य पालन करेंगे, जैसे कि हल्के पेट या खाली पेट पे योग अभ्यास करना पर लाभ मिलता है। कोई पुरानी बीमारी या योग रोग संबंधित कोई समस्या होने पर योग चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। और यहाँ बताए जाने वाली सभी योग अभ्यास अपने क्षमता अनुसार तनाव मुक्त तरीके से शास्त्र के जागरूकता के साथ करेंगे। और योग अभ्यास से 20 से 30 मिनट के बाद भोजन तथा स्नान करना उचित होगा। योग अभ्यास प्रार्थना तथा वंदना से शुरू करेंगे और अंत में तथा शांति पाठ से करेंगे। तो आइए 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में के शुभ आरंभ का प्रार्थना तथा मंत्र पाठ से शुरू करते हैं। सभी अपने स्थान पर आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं। तथा दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। कमर और गर्दन सीधी रखें। प्यार से दोनों आंखों को बंद कर दीजिए। अब हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लीजिए। संवचनभं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतं देवभागं यथा पूर्वे संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते। अब धीरे से अपने सांस लीजिए। धीरे से सांसों को छोड़ते हुए अपनी आंखों को खोलें। अब हम सचित मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। तो आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रिया तथा शिथिल अभ्यास से शुरू करते हैं, जिसके अभ्यास से शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त का संचालन बेहतर होता है। अब हम करने वाले हैं
neck forward and backward bending। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोग ये अभ्यास सतर्कपूर्व से करें। तो शुरू करें। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। गहरी सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। अब सांसों को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। अब सांसों को बाहर गर्दन को सामने स्थिति पर वापस ले आएंगे। अब हम करने वाले हैं नेक राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग। सांस छोड़ें तथा सर को धीरे से दाहिनी तरफ झुकाएंगे और कानों को कंधे के पास ले आएंगे। गहरे से सांस लेंगे और धीरे से सामने स्थिति पर वापस आ जाएंगे। अब धीरे से सांस छोड़ें और सर को बाएं तरफ झुकाएं, जितना सहज रूप से आप कर पाएं। गहरी सांस भरते हुए गर्दन को सामने स्थिति पर वापस ले आएं। अब हम करने वाले हैं नेक राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग। सांसों को छोड़ेंगे और गर्दन को आराम से दाहिने तरफ घुमाएंगे, जितना सहज रूप से आप कर पाएं। गहरी सांस भरते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। फिर से सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को आराम से बाएं तरफ घुमाएं। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। अब हम करने वाले हैं सचित मुद्रा में खड़े हुए शोल्डर स्ट्रेच। दोनों पैरों को परस्पर मिलाकर रखेंगे। पैरों से सर तक के हिस्से को सीधा रखेंगे। अब गहरे से सांस लीजिए और दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएंगे। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। अब सांसों को छोड़ेंगे और सचित मुद्रा पर वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। बाएं हाथों की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखेंगे और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। अब दोनों कोहनियों को क्लॉकवाइज चक्राकार के सामने की तरफ घुमाएंगे। रिलैक्स। गहरी सांस लेंगे तथा सचित मुद्रा पर वापस आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं नी मूवमेंट। गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को कंधे तक उठाइए। साहसबाज छोड़ें तथा घुटने मोड़ें और चेयर पोज पर बैठने की कोशिश करें। अब गहराई से सांस भरते हुए सचित मुद्रा पर वापस आ जाएं। दोनों हाथ विश्राम। आइए अब हम योग साधना की तरफ बढ़ें और आज अब हम करने वाले हैं तारा आसन। ताड़ का अर्थ होता है पेड़ और ये आसन के अभ्यास से शरीर में मजबूती का अनुभव होता है और रीढ़ से जुड़ी तांत्रिका को ठीक करने में सहायक है। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ें और कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें।
गहराई से सांस लेंगे और हाथों को सर से ऊपर उठाएंगे। अपने सामने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएंगे। अब हम सांसों को बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएंगे। हाथों की उंगलियों का जकड़न खोलें तथा हाथों को शरीर के पास वापस ले आएं और सचित मुद्रा पर खड़े हो जाएं। अभी हम करेंगे अर्धचंद्रासन। ये आसन की अभ्यास से शरीर में ऊर्जावान तथा शरीर में रक्त का संचालन बढ़ता है और कद की वृद्धि होती है। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाते हुए हथेलियों को आपस में जोड़ें। अब सांस छोड़ें और धीरे धीरे बाईं ओर झुकें। फिर सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। अब सांस छोड़ेंगे और धीरे से दाहिनी तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएंगे। हाथों को छोड़ते हुए अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। ये आसन के अभ्यास से शरीर में रक्त तथा मानसिक तथा विकास होती है, स्थिरता प्रबल होती है। पैरों को कंधों से 2 गुना ज़्यादा फासला देंगे और हाथों को कंधों के बराबर उठाएंगे। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूने की कोशिश करेंगे और बाएं हाथ सीधी ऊपर। संबंधित कोई समस्या होने पर योग चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें और यहाँ बताए जाने वाली सभी योग अभ्यास अपने क्षमता अनुसार तनाव मुक्त तरीके से शास्त्र के जागरूकता के साथ करेंगे। और योग अभ्यास से 20 से 30 मिनट के बाद भोजन तथा स्नान करना उचित होगा। योग अभ्यास प्रार्थना तथा वंदना से शुरू करेंगे और अंत में तथा शांति पाठ से करेंगे। तो आइए 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में के शुभ आरंभ का प्रार्थना तथा मंत्र पाठ से शुरू करते हैं। सभी अपने स्थान पर आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं। तथा दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। कमर और गर्दन सीधी रखें। प्यार से दोनों आंखों को बंद कर दीजिए। अब हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लीजिए। संवचनभं संवदध्वम् शम्भो मनासि जानतम् देवभागं यथा पूर्वे संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते। अब धीरे से अपने सांस लीजिए
धीरे से सांसों को छोड़ते हुए अपनी आंखों को खोलें। अब हम सचित मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। तो आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रिया तथा शिथिल अभ्यास से शुरू करते हैं, जिसके अभ्यास से शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त का संचालन बेहतर होता है। अब हम करने वाले हैं नेक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोग ये अभ्यास सतर्कपूर्वक से करें। तो शुरू करें। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। गहरी सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। अब सांसों को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। अब सांसों को बाहर, गर्दन को सामने स्थिति पर वापस ले आएंगे। अब हम करने वाले हैं नेक राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग। सांस छोड़ें तथा सर को धीरे से दाहिनी तरफ झुकाएंगे और कानों को कंधे के पास ले आएंगे। गहरे से सांस लेंगे और धीरे से सामने स्थिति पर वापस आ जाएंगे। अब धीरे से सांस छोड़ें और सर को बाएं तरफ झुकाएं, जितना सहज रूप से आप कर पाएं। गहरी सांस भरते हुए गर्दन को सामने स्थिति पर वापस ले आएं। अब हम करने वाले हैं नेक राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग। सांसों को छोड़ेंगे और गर्दन को आराम से दाहिने तरफ घुमाएंगे, जितना सहज रूप से आप कर पाएं। गहरी सांस भरते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। फिर से सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को आराम से बाएं तरफ घुमाएं। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। अब हम करने वाले हैं सचित मुद्रा में खड़े हुए शोल्डर स्ट्रेच। दोनों पैरों को परस्पर मिलाकर रखेंगे। पैरों से सर तक के हिस्से को सीधा रखेंगे। अब गहरे से सांस लीजिए और दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएंगे। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। अब सांसों को छोड़ेंगे और सचित मुद्रा पर वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। बाएं हाथों की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखेंगे और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। अब दोनों कोहनियों को क्लॉकवाइज चक्राकार के सामने की तरफ घुमाएंगे। रिलैक्स। गहरी सांस लेंगे तथा सचित मुद्रा पर वापस आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं नी मूवमेंट। गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को कंधे तक उठाइए। साहसबाज छोड़ें तथा घुटने मोड़ें और चेयर पोज पर बैठने की कोशिश करें। अब गहराई से सांस भरते हुए सचित मुद्रा पर वापस आ जाएं। दोनों हाथ विश्राम।
आइए अब हम योग साधना की तरफ बढ़ें। और आज अब हम करने वाले हैं ताड़ासन। ताड़ का अर्थ होता है पेड़, और ये आसन के अभ्यास से शरीर में मजबूती का अनुभव होता है और रीढ़ से जुड़ी तांत्रिका को ठीक करने में सहायक है। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ें और कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। गहराई से सांस लेंगे और हाथों को सर से ऊपर उठाएंगे। अपने सामने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएंगे। अब हम सांसों को बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएंगे। हाथों की उंगलियों का जकड़न खोलें तथा हाथों को शरीर के पास वापस ले आएं और सचेत मुद्रा पर खड़े हो जाएं। अभी हम करेंगे अर्धचंद्रासन। ये आसन की अभ्यास से शरीर में ऊर्जावान तथा शरीर में रक्त का संचालन बढ़ता है और कद की वृद्धि होती है। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाते हुए हथेलियों को आपस में जोड़ें। अब सांस छोड़ें और धीरे धीरे बाएं ओर झुकें। फिर सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। अब सांस छोड़ेंगे और धीरे से दाहिने तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएंगे। हाथों को छोड़ते हुए अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। ये आसन के अभ्यास से शरीर में रक्त तथा मानसिक तथा विकास होती है, स्थिरता प्रबल होती है। पैरों को कंधों से 2 गुना ज़्यादा फासला देंगे और हाथों को कंधों के बराबर उठाएंगे। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूने की कोशिश करेंगे और बाएं हाथ सीधी ऊपर। धीरे से गर्दन को मोड़ें और ऊपर की ओर ध्यान केंद्रित करें। धीरे से कमर सीधी करें तथा दोनों हाथों को छोड़ें। अब सांस लेते हुए फिर से एक बार हम विपरीत दिशा में करेंगे। अब बाएं हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करेंगे और दाहिने हाथ को गर्दन सीधी ऊपर दिशा में रखेंगे। अब सांस लेते हुए वापस गर्दन को सीधी कर लेंगे और सचित मुद्रा पर खड़े हो जाएंगे। अब हम करने वाले हैं अर्धचक्र आसन। ये आसन के अभ्यास से पीठ गर्दन में दर्द होने पर आराम मिलता है और सांस लेने की क्षमता वृद्धि होती है। पैरों को कंधों जैसा फासला देंगे। पीठ और गर्दन सीधी रखेंगे। हाथों से कमर को पकड़ेंगे। धीरे से सांस लेते हुए वक्षस्थल को मोड़ेंगे और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। अब धीरे से सांस छोड़ें और प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं और सचित मुद्रा पे खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे कोटि चक्र आसन। ये आसन के अभ्यास से शरीर में रक्त का संचालन वृद्धि होता है तथा ऊर्जा का संचालन होता है। अपने पैरों को कंधों जैसा फासला देंगे।
अब सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के बराबर उठाएंगे। हथेलियों एक दूसरे की तरफ मोड़ी हुई हो। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को गर्दन के दाहिने तरफ से पीछे की ओर ले जाएंगे और अपने बाएं हथेली से दाहिने कंधे को छूने की कोशिश करेंगे। अब सांस भरते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। अब सांसों को छोड़ते हुए विपरीत दिशा में अपने बाएं ओर से दोनों हाथों को गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं वीरभद्रासना। सचित मुद्रा पे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथों को फैलाएं, कमर के ऊपर रखें। अपने दाएं पैर को सामने की ओर ले जाएंगे, जितना सहज रूप से आप ले जा पाए, और पीछे बाएं पैर को सीधा रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में सर के ऊपर उठाएंगे। अपारविक स्थिति पर वापस आ जाएंगे और एक बार बाएं पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को सामने की ओर लाएंगे और पीछे दाहिने पैर को सीधा रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में सर के ऊपर उठाएंगे। धीरे से सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रखें, पीठ और गर्दन सीधी। इस स्थिति पर हम 3 से 10 सांसों तक बने रहेंगे। ये आसन की अभ्यास करने पर पाचन तंत्र में सुधार आता है। पीठ दर्द, हृदय रोग, मांसपेशी का कमजोरी होना, ऐसा समस्या पे विशेष रूप से लाभ मिलता है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधी करें और डंडा आसन पर आ जाएं। अब हम करने वाले हैं वज्रा आसन। कमर को सीधी करें तथा घुटने मोड़ते हुए एड़ियों को मिलाएं। अब दोनों एड़ियों को मूलाधार चक्र के पास ले आए। अब दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ें। सांस लेते हुए 3 से 10 सांसों तक इस स्थिति पर बने रहें। ये आसन के अभ्यास से मूलाधार चक्र जागृत होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। धीरे से सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधी करें और डंडा आसन पे आराम करें। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों पैरों को पीछे मोड़ते हुए वज्रासन पर आ जाएं। अब दोनों घुटने को ऊपर खड़े हो जाएं तथा दोनों घुटने और एड़ियों को कंधों जैसा फासला देंगे। तथा एड़ियों की उंगलियों को बाहर की दिशा में रखेंगे। अब हाथों को कमर पर रखते हुए पीठ को मोड़ेंगे तथा
गर्दन को धीरे धीरे झुकाएंगे। अब धीरे से सांस लें और प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं तथा एड़ियों पर बैठ जाएं। अब हम करने वाले हैं शकांसना। दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए जमीन पर रखें। अपने वक्षस्थल को सामने की ओर लगाएं, जमीन पर लगाएं। हाथों को सामने की ओर फैलाएं। धीरे से सांस लें तथा प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। अब हम करने वाले हैं उत्थान मंडूका आसना। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच पे रखें। अपने एड़ियों को बाहर रखें। अब धीरे से अपने दाहिने हाथ को बाएं कोने पर कंधे पर रखेंगे और बाएं कंधे को दाहिने कंधे पर रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए स्थिति पर बने रहें। सांस छोड़ें तथा दंडा आसन पर वापस आ जाएं। अब हम करने वाले हैं वक्रासन। दोनों पैर को सामने की ओर सीधी करेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के घुटने के सामने सीधी करके रखेंगे। सांस छोड़ें और दाहिने हाथ को बाएं घुटने की ओर से लाते हुए दाहिने हथेलियों से बाएं पैर को उंगलियों को छूने की कोशिश करेंगे। गहरी से सांस लें तथा सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। अब हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं। और आंखों को बंद करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं और आंखों को बंद करें। बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा पे रखें और दाहिने हाथ को प्रणव मुद्रा पर लेते हुए नासिका के क्षेत्र के पास ले आए। अब दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका क्षेत्र को बंद करें और बाएं नासिका क्षेत्र से सांस लें। फिर बाएं नासिका क्षेत्र को बंद करें और दाएं नासिका क्षेत्र से सांस छोड़ें। अब हम ये प्रक्रिया कुछ देर तक करेंगे।
धीरे से सांस लीजिए और गहराई से सांस छोड़ें। ध्यान रखें, सांस लेने पर जितना वक्त समय लगे उससे थोड़ा सा वक्त सांस छोड़ने पर लगाएं। ये अभ्यास करने पर नाड़ी चक्र को प्यूरिफाई करता है और हृदय रोग के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। अब हम करने वाले हैं भामरी प्राणायाम। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं। आंखें बंद करें। तर्जनी उंगली को अपने आंखों पर तथा अनामिका और कनिष्ठा उंगली को होठों पर रखें। फिर कानों को वृद्धा उंगलियों से बंद करें। ये षण्मुखी मुद्रा भी कहलाती है। अब दोनों नासिका क्षेत्रों से गहरा सांस लें और भंवरे की गुंजन जैसा ध्वनि से सांस बाहर छोड़ें। Deeply inhale, slowly exhale। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा पर अपने घुटने के ऊपर रिलैक्स करें। अब हम करने वाले हैं ध्यान। पद्म आसन में तथा कोई भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं। पीठ और गर्दन सीधी। अपने दोनों आंखों को बंद करें। डीपली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। डीपली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। इसी तरह हम इस प्रक्रिया को कुछ समय तक करेंगे। धीरे से सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ें। इस स्थिति पर अपने ध्यान को धीरे से अपने भोमरे पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे से सांस लें और गहराई से सांस छोड़ें। ध्यान रखें, सांस लेते हुए जितना वक्त आपको लगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त आपको सांस छोड़ने पे लगे। अब हम धीरे से ध्यान प्रक्रिया को समाप्त करते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। धीरे से अपने आंखों को बंद करें। गहराई से सांस लें तथा ओम ध्वनि का उच्चारण करें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम
शांति शांति। धीरे से सांस लें तथा दोनों हाथों को रब करें। गरम। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে